important part of psychiatry is counseling. Yes, you know that many times what happens, we struggle when we enter MBBS, we struggle with so many cognitive errors. What is cognitive error? You will understand later. For the time being, I can simplify that. We have so many errors when we enter, so many news are, there. So those errors should be removed. That's why I'm here, so that your journey of MBBS, not only MBBS, then MD, then super specialization can be smooth with the help of our esteemed faculty of first year, because I say this is the base on which you will build up the whole MBBS specialization and super specialization. And if it would not be strong, so how can I expect that you will learn anything else? So what is the importance of these subjects? Respective faculties of that subject will tell better than me. I feel like that. Yes. So अभी तो थोड़ा सा हिंदी भी यूज करते हैं. Yes, ma'am. और अभी you are very new, बिल्कुल नए अभी मेडिकल कॉलेज में आए हो, एंड अभी तो नाम पता चल रहे होंगे कि सब्जेक्ट्स के हैं क्या क्या. और फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है. तो we will talk about firstly जो आपके सामने challenges क्या क्या हैं, and what are the challenges that you're going to face. सबसे पहले तो एक euphoria है. You are very happy that you've entered into a medical college, but at the same time you have to settle down into a routine, and this routine is definitely tougher from your school routine. यहाँ पर lectures है, dissection है, practicals हैं, and then trying to get a grasp of these three very difficult subjects. Not very difficult subjects, but definitely moderately difficult subjects, and especially since they are new. So to get a grasp of the subjects, a new environment, किस तरह से, how to balance study, मस्ती भी करना है, मूवीज के लिए भी जाना है, बाहर खाना भी है, और साथ में पढ़ाई भी करनी है. So how are you going to balance all that? आज ये सब हम डिस्कस करेंगे. Okay, जिस तरह से जैसे ही कभी भी लाइफ में इस तरह से हो जाता है ना, होच पूछ जाता है, घबराना नहीं है. लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आएंगी जब तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे और बाय चांस ऐसी चीज हो जाएंगी, तो घबराना क्या यार, ये तो लाइफ है. हर बंदे के साथ ऐसा हो सकता है, बट टू बी कूल, यदि कूल हो और इन सिचुएशंस को तुम हैंडल कर पाए, तो डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर. इट्स नॉट योर इंटेलिजेंस, इट्स योर इमोशनल क्वेश्चन. व्हेन यू आर इमोशनली स्टेबल, दैट आई कैन डू, ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. थोड़ा चेंज हुआ, फिर हमने ठीक कर दिया. तो MBBS, वेरी वेल पुट डॉक्टर अंकुर, कितने अच्छे से उन्होंने समझाया. एंड सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, कि आप किस तरह से अपनी स्टडीज को, प्रैक्टिकल्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किस तरह से बैलेंस करेंगे, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे, which are the textbooks that you're going to use. That is what we are here for today. So again, the common questions which are being asked, students of the first MBBS who just entered, the kind of questions that they ask us is कि किस तरह से हम notes, क्या हम MCQ practice करें या नहीं, कि किस तरह से self study करें या lectures attend करें, how do I manage all my schedule, what are the tips, and how should I start preparing for my NEET PG. So ये सब, these are the frequently asked questions, and these are what we are going to address today. Yes, so सबसे पहले तो पढ़ना तो पड़ेगा. This has to be done. ये तो नहीं है कि anything, कोई भी चीज बिना मेहनत के, बिना no pain, no gain. So there has to be study, but how you're going to study, that is what we are here for today. I think पढ़ते तो ये आए हैं. That is true. That's why they are. That is true. That's why you are here, dear. बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं. तो ये कहना पढ़ना तो पड़ेगा, तो कई बार मुझे अनजस्टिफाइड सा लगता है, पर मैं ये कहूंगा अब भी पढ़ना पड़ेगा, अब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी, यू नो. एंड मैं कह रहा हूँ आपको ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, एंड व्हाई वी आर हियर, बिकॉज यू नो दैट वी आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो हमें प्रिसाइज होना ही पड़ेगा. और एंड दैट इज नॉट फॉर द मनी, दैट इज नॉट फॉर द नॉलेज, दैट इज फॉर योर अनकॉन्शियस प्लेजर. व्हेन यू ट्रीट ए पेशेंट, अभी तुम्हें फील नहीं आएगी, अभी पढ़ रहे हो, एंड मी फिजियो, बायोकेम, कभी कभी लगेगा कि यार पेशेंट से तो हम बहुत दूर हैं. But the real feeling you will get when these knowledge will be implemented in the clinical practice, then you will realize the power of these three subjects. Absolutely. Very good. Wonderfully put. And so this is what we are going to focus on.
आपको किस तरह से एक अपने नए रूटीन में सेटल करना है. But what I really want to emphasize is my third point here, कि consistency is the key. आपकी ये जो जर्नी है मेडिकल कॉलेज की, ये इसमें जो व्हाट इज रियली हेल्प्ड, और हम लोगों ने देखा भी है, जितने भी हमारे टॉपर्स भी रहे हैं, हम लोग अपने टाइम में भी कॉलेज में देखा है, जितने हमारे बाद में टॉपर्स भी आए हैं, सबका जो एक कॉमन फैक्टर जो मुझे दिखाई दिया है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. जिसने लगातार पढ़ाई की है, he has always aced his exams. And that's exactly what we are going to focus on. एक मैं बहुत मुझे जो बोलने में बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप रोज एक लड्डू खाएंगे तो पचा पाएंगे, लेकिन अगर आपने 30 दिन के लड्डू एक संग खाए तो नहीं पचेंगे. And that's exactly what we need to convey to you, कि consistency. आपको लगातार पढ़ना है. कब पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका पूरा टाइम पढ़ाई में जाना चाहिए, लेकिन वो अगर आप 2 घंटा भी रोज देंगे, that is more than enough. Little more on the weekends also. Yeah, definitely. Yeah. And it depends on the student also. Okay, how much you want to invest your time. कई बार ऐसा होता है कि हमारा pleasure ही पढ़ाई में होता है. Different persons are having different personality. तो it depends on you, but at least 2 hours. At least 2 hours. Yes. At least 2 hours. इसका एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं. जी सर. किसी को फिटनेस करनी है, जिम जाएगा, एक दिन में क्या बॉडी नहीं बनेगी, 2 दिन में क्या नहीं बनेगी, एक हफ्ते बाद देखेगा उसमें 10% चेंज आएगा, 6 महीने बाद और चेंज आएगा. लेकिन एक दिन में मान लो वो 6 घंटे जिम करेगा, कुछ नहीं होगा, उल्टा बीमार पड़ सकता है. दूसरा एग्जांपल, रोज सुबह उठ के ब्रश करना है, शाम को ब्रश करना है, दिन में 2 बार, 7वें दिन 14 बार ब्रश कर लो, 6 दिन में क्या होगा. तो कंसिस्टेंसी का लाइफ में आप कोई भी एग्जांपल ले लें, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, कंसिस्टेंसी MBBS हो, चाहे आपने नीट UG निकाला, आपको वहां भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा. जिन बच्चों ने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है 8-10 महीने, उनका डेफिनेटली स्कोर प्रूव करेगा, बेटर करेगा. तो कंसिस्टेंसी इज द कोर वर्ड. और हैबिट, मतलब आपको एक रूटीन बनाना है, एक हैबिट बनाना है कि मुझे इस समय सोना है, इस समय उठना है, इतना मुझे कॉलेज में समय जाएगा, उसके बाद मैं आने के बाद चाय पीऊंगा या फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करने के बाद मैं इतना. सो एवरीथिंग हैज टू बी, you have to settle down into a routine. That is very, very important. इसमें यहाँ डरना नहीं है. जैसे मैम ने बोला कि रूटीन है, तो बिल्कुल है, लेकिन 90% अगर रूटीन आ गया तो 10% बदमाशी करने की इजाजत है. सर आजकल तो चीट डे चल रहा है. हाँ. रिलेशन में चीट डे आ गया, तो मतलब पढ़ाई में तो बन सकता है थोड़ा सा. Being a psychiatrist, we do face all these things day to day basis, and that's why I know about these terminology. तो कोई चीट डे कर सकते हो, आज नहीं पढ़ा तो चलेगा. लेकिन 90% क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एंजॉय करें, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस हैं, छोटी छोटी रील्स हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मन चंचल है, भागेगा, बिल्कुल भागेगा. अब आपको समझना है कि आप किस लिए आए हो. डॉक्टर बनने आए हो तो पहला ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट टास्क है, वो पढ़ाई कर लो. एक बार आपने जो अपना दिन के 1-2 घंटे निकालने पे निकाल लिए, अब आपको इजाजत है कुछ करो, अपने आप को परमिशन दो, अपने आप को रिवार्ड करो, कंसिस्टेंसी रखिए, रिवार्ड लीजिए, एंजॉय भी कीजिए. इसे बोलते हैं हिंदी में संतुलन. सारा गेम संतुलन का है, बैलेंस. अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर आप खाली पढ़ते रहेंगे तो शायद सर के पास जाना पड़े कुछ टाइम बाद. ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग हैं इसीलिए. तो ज्यादा मतलब एक चीज हमेशा नहीं करते रहना है, बैलेंस बना के चलिए. मेजोरिटी पढ़ाई, माइनॉरिटी आप एंजॉय कीजिए, जो भी आपकी हॉबीज हैं, कुछ भी है. सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, एलन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं. इट्स रिनाउंड फॉर हैंड होल्डिंग. इट्स नॉट ओनली फॉर दैट सेमिनार की वी आर हियर टू होल्ड योर हैंड्स, not only for 1 year, 2 year, the whole MBBS journey. After MBBS, your post graduation journey, we will be there. और जो एलन से परिचित है, वो जानता है कि एलन हैंड होल्डिंग करता है तो प्रॉपरली करता है, and we are committed for that. That's why we are here, and we promise on the part of Alan that we will be there throughout your journey. Absolutely. Okay. And that is a promise, and that is something which we strive to do. Yeah. We want to be a part of it. We want you to make us a part of your तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. That's why we are here. सही बात है जी. अब एक 2-3 स्लाइड्स, 2-3 पॉइंट्स की हम लोग किस तरह से आप अपनी पढ़ाई करेंगे. तो वही चीज जो मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बता रही थी कि आप
2 घंटा आप दिन में निकालें, वही जो सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो अल्टीमेटली जिसने रेस जीती वो कौन था, एंड somebody who was consistent and determined, वही चीज आपको लानी है. You have to be the tortoise and not the hare. So that is what the slide is trying to tell you. Next, जो आपको एक छोटा सा टिप कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई करेंगे, एक टॉपिक को आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे. This is the exact thing that what I'm trying to show you. Try and break up your topic into smaller subtopics. जब आप एक सब टॉपिक ले रहे हैं, यू विल कन्वर्ट दम इनटू वन लाइन क्वेश्चंस. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी कॉलेज शुरू हुई है, फिजियोलॉजी में शायद आपको एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया होगा. So then the moment you read about action potential, your first thing when you see depolarization, repolarization, the first thing when you're reading, your one-liner should be what causes depolarization? Opening of voltage-gated sodium channels. What causes repolarization? Opening of वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स. तो एक आपने 2 वन लाइनर्स बना लिए, उससे आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल का, ये बिल्कुल एक तरह से इम्प्रिंट हो जाएगा आपके ब्रेन में. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दैट ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर टॉपिक्स एंड कन्वर्ट द पॉइंट्स इनटू वन लाइनर्स. Then we also want you to be able to apply to common day-to-day scenarios. Let's say a small thing, when you go to cardiovascular system, आप baroreceptors के बारे में पढ़ेंगे. जब आपका common experience है कि आप जब बिस्तर पे लेटे हुए हैं and suddenly you hear the doorbell and you jump up. The moment you jump up so many times, or at least a few times, एक आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है. What is that? What is that due to? That we tell you in cardiovascular system कि baroreceptors क्यों अंधेरा आया, एक पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हुई एंड दैट कॉजेस स्लाइट डार्कनेस, बट वो इमीडिएटली करेक्ट भी हो गया. किसने करेक्ट किया? आपके बायोरिसेप्टर्स ने. तो वो कॉमन डे टू डे सिनेरियोज में आपने ये फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. तीसरी चीज, वी वांट यू टू क्रिएट फ्लो चार्ट्स एंड निमोनिक्स. एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे पॉजिटिव फीडबैक. अगेन आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा होगा, तो आपको फीडबैक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बताया जा रहा है इन फिजियोलॉजी. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक? क्लैप्स, CLAPS, claps. And what are those examples? That of course, as we go along, C से जैसे clotting है, L से LH surge है, A से action potential है, P से parturition है, S से shock है. These are examples of positive feedback. So we want acronyms and mnemonics. So these are how you are going to learn your different topics. बुक्स भी आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल. पढ़ाई के बाद चली रही जी. अच्छा, थोड़ा सा एक और था कि आपको हर टॉपिक के ऊपर you must remember that every topic is significant. एक बड़ी कॉमन सी चीज जो हमने देखी है मेडिकल कॉलेजेस में, जनरली आप क्या करते हैं, अपने सीनियर के पास जाते हैं, आपने ज्ञानांक ली और बोला सीनियर को कि मार्क कर दो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. नहीं, we will right from day one pledge that every topic is important. Of course, some topics are more important than others. If you only look at the marked topics की सिर्फ यही पढ़ना है, फिर वो लैक्यूने आ जाएंगे आपकी नॉलेज में. इस स्टेज पे definitely that is avoidable. So I will always say that every topic is significant, some a little more than others. And which are the ones which are more than others? Which are the ones which you have to focus on? We keep telling you in our lectures, in our interactions with you. So please remember that it has to be that every topic is significant. Then again, we would like you to know something about every topic. Lekin at the same time, there will be some topics that we want you to know in the minutest possible detail. Thorough knowledge होना चाहिए उस topic का. Lekin definitely we would like you to know something about every topic. Some a little more than others. These are some very, very important, again, do's and don'ts to outperform in academics. और एक जो मेरा पॉइंट रहता है, कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए. You are your own competition and you've seen this. NEET UG के टाइम भी यही चीज है कि आप अपने खुद के competition. You are fighting against your urge to go on Instagram. You are fighting your urge to go out and maybe watch. So you are your own competition. और दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उसने तो 6 घंटे पढ़ा, उसने 4 घंटे पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा. So
you have to focus on yourself. But at the same time, I always also say that please be kind to yourself. Do not be harsh to your own self. Be kind to yourself. And like I said, do not compare. ये मैं दोबारा आपको reiterate करूँ, है ना? आप भी कुछ add करें? Yes, ma'am. इसमें मैं ऐड करूंगा फ्रेंड्स, कि I just told you about cognitive errors. Cognition मतलब thinking. Yes, we have so many cognitive errors in our daily life. बहुत सारी गलतियां होती हैं जो गलत सोच बना लेते हैं हम. तो when we enter in MBBS, at the same time, few cognitive errors start coming in our mind. Because previously you have learned that the first ranker is successful. Yes, first rank, second rank. Yes, first rank you must be having that topmost in academics in your college or school, better to say. But now everybody is topper. Yes. So many times students start believing that if I got 20th rank in the first PCT, that I'm not successful. No dear, everybody is topper now. A single movement means even a single answer can change the position. The ma'am said that don't compare. The purpose not to compare is that you are sailing the same boat. Everybody is competent. Little bit difference may come, but if you have done your hard work, you are successful. It's not the number. It's your hard work, your energy you have put in your study that will determine your success rather than marks. So never ever compare about the marks. The only thing you will think about that if I have invested 2-3 hours daily, I am successful, I am competent, and I would be. I guess the 3 Idiot movie will help over here. Yes, 3 Idiot movie will help because students learn a lot from the movies. Yeah. 3 Idiot starring Mr. Amir Khan. ये यहाँ पर help कर सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. रणछोड़ दास. जी. दो यहाँ पर important points कि अब कौन सी किताबें, which are the books to study? Indian authors लें या standard textbooks. मैंने से standard textbooks जैसे for example physiology के लिए अगर आप बात करें तो एक है textbook of physiology which is Guyton and the review of physiology which is Ganong. ये दो हमारी standard textbooks हैं. And there are plenty of Indian authors की textbooks. हर एक region में अलग-अलग authors को favor किया जाता है. But I will urge you, and especially now since you're just starting, that you must read standard textbooks. यही time है जहां आप Guyton और Ganong को पढ़ते हैं. इसके बाद आप सोचें कि second year या third year में नहीं. There is absolutely no time. और क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि standard textbooks पढ़ना है, especially Guyton, because जो concepts आप Guyton में सीखेंगे, वो आपको बाद में कोई और किताब नहीं बता पाएगी. आप मेडिसिन कर रहे हैं फाइनल ईयर में और आपका दिल कर रहा है कि कोई मुझे ये बेसिक्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी समझा दे, फिर आपका दिल करेगा कि मैं अभी गाइटन खोल के उसमें से देखूं. तो अगर आपने उसमें से पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में जब आप उसको दोबारा देखना चाहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि ये मैं कॉन्सेप्ट पहले समझ चुका था फ्रॉम गाइटन इटसेल्फ. सो आई विल अर्ज यू दैट please try and stick to standard textbooks. This is the time that you will be able to read these standard textbooks. अब प्रॉब्लम आती है कि इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की लैंग्वेज कभी थोड़ी डिफिकल्ट होती है. दिस इज गिवन दैट समटाइम्स आपने पूरा पेज पढ़ा और आपको समझ ही नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला क्या है. So how do you do that? Now, how do I go about it? This is the common question which I'm asked. So when you look at the lectures which we have recorded for you in the foundation course for first year, they are both in English as well as in English. English मतलब ये जो conversational हिंदी हमारी चल रही है, इसमें भी है और pure English में भी है. And these lectures are basically from where? These are from your standard textbooks. जैसे physiology की lectures हैं, वो Guyton और Ganong का एक निचोड़ है. तो वहां पर मैंने आपको Guyton और Ganong को सिंप्लीफाइड फैशन में प्रेजेंट किया है, दिया है, और आप उन्हें लेक्चर्स को देखें एंड देन ट्राई एंड रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड यू फाइंड दैट यू विल बी एबल टू ब्रीज थ्रू इट. इतने आसानी से आपको समझ आ जाएगा बिकॉज इफ यू हर्ड द लेक्चर यू नो एग्जैक्टली विच पॉइंट्स टू फोकस ऑन. तो जब आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में टेक्स्ट से तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनके ऊपर मैम बात कर रही थी.
तो it becomes very easy then to read these standard textbooks. और दूसरी बात which I would like to stress on over here is try and make your own notes. That is another very beautiful way to learn, to memorize, to remember, to retain all this information is कि चाहे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, अपने नोट्स लिखें और नोट्स भी पॉइंट वाइज नोट लिखना है. दैट इज एग्जैक्टली जब हम पढ़ा रहे हैं आपको बोलते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, दीज आर व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर, एंड ट्राई एंड मेक योर own notes. I have to stress upon the point about importance about making your own notes. Absolutely. जी. So I hope notes making is an art and it is a very personal experience. I would like to add a few points about notes making. अब देखिए notes making एक कैसे करना है, इसके कुछ अगर आप चीज समझ लें या फिर आप ऑलरेडी जानते हैं तो हेल्प रहता है. अब नोट्स मेकिंग के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड बिफोर हैंड. फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक में नोट्स बनाना है, लेट अस से टॉपिक ए, नाम नहीं लेगा, कोई भी टॉपिक है. यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, उसे थोड़ा समझिए. देन यू नीड टू मेमोराइज इन योर माइंड कि उसमें कीवर्ड, बेसिक की पॉइंट क्या था. उस की पॉइंट को यू हैव टू ऑर्गेनाइज इन योर कॉपी व्हिच मेक्स सेंस टू यू. ये बहुत जरूरी है. विद द हेल्प ऑफ क्या क्या चीजें, यू हैव फ्लो चार्ट्स, यू हैव ग्राफ्स, आप टेबल बनाइए, आप बुलेट पॉइंट बनाइए, आप सिंपल लिखिए आपकी जो हैबिट है विच इज मेकिंग सेंस टू यू, एंड एंड में यू नीड टू समराइज दैट. सो अब इसमें हमें क्या करना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस. मुझे फ्लो चार्ट में अच्छा समझ में आता है, बनाइए. बट इससे क्या होगा, बिकॉज देयर इज वन मोर थिंग, जब आप कोई चीज लिखते हैं, व्हेन यू राइट एनीथिंग देन यू अप्लाई योर ब्रेन. जब आप पढ़ते हैं, हो सकता है पढ़ रहे हो समझ ना रहे हो, चीज को समझिए. डिफरेंस है रीडिंग एंड राइटिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. व्हेन यू आर रीडिंग, you might be only reading, you might not be understanding. But when you are writing without seeing anything, बिना देखे कुछ लिख रहे हो, then you have to apply your brain. तब आएगा असली चीज, हाँ ये निचोड़ निकल के आया, ऐसा मुझे समझ में आता है. अब वो कैसे लिखना है, ये आपका प्रेफरेंस है. You have thousands of things. आप ऑलरेडी 12th क्लियर किया, आपने नीट यूजी क्लियर किया है, नोट्स मेकिंग में यहाँ हेल्प करेगा. अब आती है बात एनाटॉमी सब्जेक्ट की. देखिए एनाटॉमी सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, अगर 3 सब्जेक्ट लेने तो हाँ वॉल्यूम इसकी ज्यादा है. रीजन ये है कि ये 2-3 सब्जेक्ट से मिलकर बनता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी, देन यू हैव एम्ब्रियोलॉजी, देन यू हैव हिस्टोलॉजी, एंड फाइनली यू हैव डिसेक्शन आल्सो पार्ट ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी. अब एनाटॉमी इज रिगार्डेड एज अ, सिंपल भाषा में बोलूं, पेन. एक दर्द है, ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. अब उस दर्द को हमें समझना कैसे है. दर्द क्या है, दर्द तब तक है जब तक आपको चीज समझ में नहीं आ रही है. द मोमेंट यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, it becomes a joyful pain. वो फिर जॉय आता है उसमें. अब एनाटॉमी की जहां तक बात करें हम टेक्स्ट बुक्स की, चूंकि ये 3-4 सब्जेक्ट से बना है, तो स्टार्टिंग विद द ग्रॉस एनाटॉमी व्हिच फॉर्म्स द बल्क, क्योंकि बल्क वही है. स्टैंडर्ड बुक इज बीडी चौरसिया. बीडी चौरसिया लीजिए, इट विल हेल्प यू इन मेकिंग नोट्स आल्सो. उसमें सीधे सीधे पॉइंट वाइज है, इट विल हेल्प यू मेकिंग नोट्स. प्रॉब्लम अब इसमें प्रोज क्या है, प्रोज यू कैन मेक नोट्स. कॉन्स पे आइए. द कॉन्स ऑफ दिस बुक इज दैट इट डजंट हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. For that you can use Gray's anatomy for the student. याद रखना, student underline. वो मोटी Gray's मत ले लेना. Then you will not be able to cover that subject plus other subject. तो BD Chaurasia will help you making notes. समझने के लिए Gray's anatomy, please atlas लेके चलो. Anatomy is mainly about visualization. आपने जो चीज फोटो देखी, BDC में लिखा है, Gray's anatomy कंसेप्ट बने, एटलस में फोटो देखी. प्लस सेकंड थिंग, जो आपके कॉलेज में टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, साथ साथ करते जाइए. क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइजेशन अगर लैग कर गया, मान लीजिए आपकी लोअर लिम्ब आ गई, आपका अपर लिम्ब छूट गया. अब आप अपर लिम्ब पढ़ना चाहते हो, लोअर लिम्ब भी छूटेगा, ना अपर लिम्ब समझ में आएगा ना लोअर लिम्ब. तो जो चल रहा है प्रेजेंट वहां रखिए, जो छूट गया बीच में टाइम निकालिए, हफ्ते के एंड में, वीकेंड में पढ़िए उसको. तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आई वुड प्रेफर बीडीसी फॉर नोट्स. कंसेप्चुअल के लिए ग्रेज है, क्योंकि बीडीसी यू हैव टू पास फर्स्ट ईयर. समझिए व्हाई आई एम सेइंग बीडीसी, आपको पास करना है. सारा कंसेप्ट बन गया, आप लिख नहीं पा रहे हो एग्जाम में, फायदा क्या. तो बीडीसी फॉर पासिंग, concepts for Gray's anatomy सब correlate हैं, overlap करेंगे. And Natus atlas or any atlas like Grant's atlas, Thyme atlas, Macmillan's have actual photograph of cadavers. It might help a lot. वो रखिए, क्योंकि there are many colleges which not might be having the real human body for cadavers. आप Macmillan's atlas रखिए. Nowadays we have PDF. Second point, embryology. Remember, IB Singh is the favorite book since decades. But मैं stress कर रहा हूँ, Langmans लेके रखिए. It is not a very thick book.
It will help your concepts building. Because the moment you understand embryology, you will understand the body. फोन के बारे में समझना है, बेस्ट तरीका है फैक्ट्री चले जाओ 2 दिन, कैसे क्या बन रहा है, पार्ट्स कहाँ जुड़े हैं, समझ में आएगा. If you want to understand the body, learn about the embryology. And the gold standard in the whole world is Langmans. छोटी बुक है, कंसाइज है, बहुत बढ़िया है, लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है. प्लस यू कैन ऐड ऑन आईबीएसएन क्योंकि आपके पास होना है. लास्टली हिस्टोलॉजी भी आती है. हिस्टोलॉजी इज प्रेफरेबली द इजीएस्ट पार्ट ऑफ एनाटॉमी. यहाँ पर आपको एटलस अगेन you need because you need the diagram of slides. Diffeor's atlas is a very very good atlas. It is an atlas cum textbook. Second thing, if you want to go through some theory of histology, then you can choose IBSIN. If you have more interest, चीजें बहुत सारी, बुक्स बहुत सारी हैं, बस यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं. ज्यादा आगे मत जाओ क्योंकि इन डेप्थ ज्यादा नहीं जाना है, इतना जाना है हमारा कंसेप्ट बने. तो ये कुछ बुक्स हैं एनाटॉमी की that might help you. Again, this is a common mistake I see in pan-India medical colleges. People are not buying dictionaries. I don't know why. Medical dictionary is a must. The moment you enter medical college, language change हो जाती है. There is a medical terminology. Medial, lateral, यहाँ वहाँ अलग अलग शब्द आएंगे. आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको मीनिंग नहीं समझ में आया, you will jump forward without understanding. Always buy a medical dictionary. फोन पे रिलाई मत करो पीडीएफ में. फोन चार्ज नहीं है, फोन चार्जर पे लगाए, आप मीनिंग नहीं छोड़ दोगे, 5 साल वो मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा. Buy a textbook of medical dictionary, साथ में रखिए. So these are few books which you should buy for anatomy. Highly recommended, as madam already told, as sir already told. This is the only time to study textbooks. Period. Full stop. आगे मौका नहीं मिलेगा. आगे पढ़ोगे तो बहुत दर्द होगा. I'm telling you from some personal experience also. जैसे मैम बता रही थी, गाइडन पढ़ ली पहले नहीं पढ़ती बाद में, तो ऐसा होता है. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट आप गलतियां मत कीजिए. For this we all are over here. We are not just teaching you something, we are trying to be your mentor in a positive way. समझिए, हमने जो गलतियां की हैं या जो गलतियां देख रहे हैं आजकल हो रही हैं, आप मत. These are all possible things. आप ये कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए, बीच में हॉबीज वगैरह सब आराम से हो जाएगा. एनाटॉमी तब पढ़िए जब आपके कॉलेज में डिसेक्शन हो रहा हो. आपने आज घर में बैठ के आप पूरे 4 पेज अपन के पढ़ लोगे, अगर आपने देखा ही नहीं है तो क्या फायदा उसका. Anatomy, याद रखिए, is all about visualization. Physium, I guess ma'am will agree with me, is more about concept building. Absolutely. But anatomy is more about visualization. Body के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या जा रहा है. Physiology वो क्या कर रहा है. Anatomy कहाँ से कहाँ आ रहा है, वो कैसे आ रहा है. Physiology वो कर क्या रहा है. तो यहाँ anatomy is all about topography. Physiology is about function. And the third subject, biochemistry. Yes, biochemistry के लिए we have an excellent teacher, very again highly experienced teacher, Dr. Jain, जो आज unfortunately is taking a class somewhere, so he couldn't join us. But what is very unique, and you will appreciate this fact that Dr. Ankur is a double MD. He's MD biochemistry and MD psychiatry, though he will be taking psychiatry classes. लेकिन ये भी बायोकेमिस्ट्री में बहुत देर तक क्लासेस लेते रहे हैं बिफोर ही शिफ्टेड टू. ये एक बहुत यूनिक केस है. ये बहुत आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे अपनी जिंदगी में जिन्होंने डबल एमडी किया है. एंड सर हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बायोकेमिस्ट्री, बट फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ही हैज शिफ्टेड टू साइकियाट्री. तो सर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, जो बायोकेमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, लिपिनकॉट एंड हार्पर, है ना. तो थोड़ा सा आप भी बच्चों को बता दीजिए. Okay, I have done post graduation twice, one biochemistry and one psychiatry. So you know that biochemistry is a little bit neglected subject. Many times we feel it's anatomy, so many visualizations are there, and whenever you will enter the MBBS, you will be preoccupied with 2 subjects, anatomy and physiology, and biochemistry will be neglected. But dear friends, it is the backbone of medicine. Absolutely. Okay, I give a simple example. If we talk about serotonin, it starts from physiology, then horizontal integration, biochemistry, then pathology, yes, carcinoid syndrome, then surgery, yes, then psychiatry. Yes, in psychiatry, what happens in depression, serotonin is decreased. In pharma, all the drugs which increase the serotonin, the treatment for depression, means biochemistry is really required for you. So don't neglect it. 2 books, one Lippincott, very nice book. It is easy to understand, but I have seen few questions are newly framed questions are taken from Harper. So we can't totally skip that Harper,
But Dr. Amit Jain has taken care of both of these books. The best part is that Dr. Amit Jain has, yes, we usually discuss, we are just close friends. We discuss, and he has taken those aspects which is required from Harper, and he made the base of Lipin Court. So when you will learn Lipin Court, and the additional thing which is required means from Harper has been included in his lectures. So Fantastic. it would be really great experience when you will hear those lectures. This is all about, I think, Dr. Amit Jain would have taken care of all these aspects in a better way. But on the behalf of Dr. Amit Jain, I can assure you that if you will hear his lectures, you will find that it's really, really interesting and amazing. Very good. Right. So this is what we wanted to focus on, how we are urging you, requesting you to stick to standard textbooks and to make your own notes. Right. So, of course, we also know that all work and no play, we know that very common idiom, but definitely we also urge you to take out time for relaxation. You have to participate in extracurricular activities. पहला जो first year medical college का हम सब ने बहुत मस्ती भी कर, पढ़ाई भी की है, मस्ती भी की है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारे किए हैं. सब चीज का एक, लेकिन वो जो की वर्ड है बैलेंस, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है. और लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप मेडिकल कॉलेज आए हैं, एंड दैट इज स्टडी, सो दैट हैज टू बी योर प्राइमरी फोकस. और साथ साथ में थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन जो मेजर फोकस है वो पढ़ाई पर ही होना चाहिए. Ma'am, I would like to add few points for extracurricular activities. Actually, in the first year when you will enter, you will be a little bit, tensed because of so many rumors. And when you will look at the books, just like Sir told, anatomy looks like a pain. Okay, so definitely it is. Because so much of so many confusing words, similar words, Too much of information and similar words, you will be confused. So we may go in depression, although depression is defined in a different way. When you will learn psychiatry, then you will understand. But many times what we start feeling that I am exhausted, overwhelmed, yes, overwhelmed. So if you do regular exercise, it may be part of this. Or yes, so when you will do exercise, our body has means protective mechanisms for depression and anxiety. So it is scientifically proven, if you do regular exercise 15-20 minutes, that it will prevent depression and anxiety. So this should be part of your life. Second thing I would add at this time, sleep. Many times we start compromising sleep. We start cutting hours of sleep to invest that time in study. But sleep structure, in REM sleep, when you are सुहाने सपने देखते हैं जब, you all are aware about the सुहाने सपने. Yes, in REM sleep our memory is consolidated. Means जब तुम पढ़ रहे हो दिन में, रात को सो रहे हो, तब भी तुम्हारा माइंड काम कर रहा है. Your mind is working for you in REM sleep, इसीलिए को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं. यदि तुम उसको कट कर दोगे, तो जो तुमने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, कहां से इन्वेस्ट किया? तुमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया. इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज द टाइम, तो और जो अवॉइडेबल सिचुएशंस हैं वहां से निकालना है. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप. डॉक्टर अंकुर, एक चीज और भी बता दीजिए कि आइडियली कितना बच्चों को, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड? या यस मैम, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है. एक्चुअली क्या होता है, कुछ शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं. ये हमारी बॉडी की अलग अलग पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है. आइडियल टाइम 6 to 8 hours होता है. कुछ शॉर्ट स्लीपर्स भी हैं, कुछ मेडिकोज में भी देखा है मैंने, कुछ मेरे बैचमेट भी थे, कि मतलब यूज्ड टू टेक ओनली 4 hours स्लीप और वो फ्रेश रहा करता था. वो शॉर्ट स्लीपर था. कुछ भी होते हैं, तो जैसे शुरू में भी हम कह चुके हैं, कंपेयर नहीं करना. तो कई बार हम सोचते हैं ये 4 घंटे से अपना काम चला लेता है, क्योंकि वो शॉर्ट स्लीपर है. तो तुमने 6 to 8 hours स्लीप लेनी है, साउंड स्लीप.
और एक जो और पॉइंट जो मैं आपको which I want to lay stress on again from a physiology point of view कि एक फिक्स टाइम रखें सोने का और एक फिक्स टाइम रखें सुबह उठने का। तो अगर आप 6 घंटे स्लीप, सो मेक श्योर दैट 11 PM या 12 midnight अगर आप सो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली 6 hours of complete sleep. And this is again very important because जहां आप if you have these erratic hours of sleep, तो जो एक sleep cycles हैं हमारी non-REM sleep, they get disturbed. Yes. So be careful about number of hours of sleep, 6 to 8 रखें और एक fixed hour of sleep रात में कितने बजे आप सोने जाएंगे और सुबह आप कितने बजे उठेंगे, तो एक रूटीन बनाना भी जरूरी है। This is also extremely important. यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेडिकल साइंस जी। कि कितना रिलेशन है कि यू टोल्ड दैट कि एक सर्केडियन मेंटेन करनी है, बिल्कुल। और मैं इसी को क्लिनिकली इंप्लीमेंट कर देता हूँ जी। कि यदि मेरे पास एक पेशेंट आता है, पेशेंट केम टू मी हैविंग स्लीप डिस्टर्बेंस, द फर्स्ट थिंग आई विल डू दैट स्लीप हाइजीन। और स्लीप हाइजीन का पहला पॉइंट क्या होगा? फिक्स टाइम ऑफ स्लीप, फिक्स टाइम ऑफ वेकिंग अप। यस, तो यानी कि फिजियोलॉजी पढ़ी इंटीग्रेट साइकेट्री से, तो क्या फिजियोलॉजी छोड़ पाओगे? मैम ये बड़ा मिथ आ रहा है स्टूडेंट्स को में कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसे कैसे? आपकी जब बिल्डिंग की फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो बिल्डिंग ऊंची इमारत आप खड़ी करोगे कैसे? ये तो आपने अभी देख लिया। यदि सपोज करो मैं साइकेट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे स्मॉल सब्जेक्ट फाइनल ईयर में आएगा, ठीक है, और आपको मुझे स्लीप साइकिल दोबारा से पढ़ानी पड़ रही है, तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी ना। तो यदि तुम पहले से पढ़ के आ रहे हो, इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द स्लीप स्ट्रक्चर साइकिल्स, देन इट वुड बी इजियर फॉर मी टू बिल्ड अप द लेटर डिफिकल्ट कंसेप्ट। अदरवाइज मुझे क्या होगा, जो इनिशियल सिंपल कंसेप्ट है वही समझाने में रह जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि तुमने फिजियोलॉजी में आप NREM स्लीप, REM स्लीप के डिफरेंसेस करोगे, स्लीप साइकिल क्या है वो करोगे, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन सी स्टेज ऑफ स्लीप में आते हैं वो सब पढ़ोगे और वही सब अप्लाई करोगे। मैम वही हमारा डिसऑर्डर्स होते हैं, REM स्लीप के कौन से डिसऑर्डर हैं, NREM के कौन से डिसऑर्डर्स हैं, हम इसमें ये दवाई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि NREM पे इफेक्ट डालती है। तो मेन चीज यही है कि इस 3 सब्जेक्ट्स में you will not in touch with patients। तो कभी भी लगेगा यार कि ये पेशेंट के टच में है ही नहीं, क्या जरूरी है मेरे लिए? तो कई बार ऐसी फीलिंग्स आएगी, डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही यार, है ना। डॉक्टर वाली जब तुम्हारी इमेज आती है तो एकदम की स्टैफ कोट वार्ड में जा रहे हैं, पेशेंट्स से लेटे हुए हैं, आएगा यार, ये फेज आनी है तुम्हारी लाइफ में, बट उसके लिए तुम्हें पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो एनाट, फिजियो, बायोकेम इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। मैं समझता हूं कि यदि तुमने फर्स्ट ईयर अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर लिया तो आगे पूरी जर्नी बड़ी स्मूथ जर्नी होगी। ठीक है, मैं एक चीज और भी ऐड कर सकता हूं, जैसे स्टूडेंट जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में आए, आपको पूछते यार ये कितने साल का MBBS है, 4.5 का, अच्छा, फिर इंटर्नशिप 1-2 साल, 5-6 साल, क्या क्या सब्जेक्ट है, अच्छा वो सर्जरी का पढ़ाता है, सर्जरी का, अच्छा पापा हमारे ऑर्थोपेडिक्स कब आएगी? तो बेटा ऐसा है कि अगर आपको कुछ चीज बोलनी है, ऐसा आपको कोई एक लाइन बोलनी है, ऐसा मैं बोलूंगा माय नेम इज डॉक्टर अंकित। अरे मैंने कैसे सीखा? जब मैंने ABCD सीखी, फिर मैंने इसके वर्ड बनाए, फिर लेटर बने, सेंटेंस बना। जो ABCD है, अगर तुम्हें यही नहीं आएगी तो आगे कुछ नहीं हो पाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर, और दूसरी बात, हमारे टोटल ये सुन लो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके 19 होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन इन 19 सब्जेक्ट्स पढ़ के आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, MBBS डॉक्टर आप बनोगे। 19 सब्जेक्ट्स क्यों हैं? हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक्ड है। क्यों फर्स्ट ईयर में मेडिसिन सर्जरी क्यों नहीं पढ़ा दी? 1 साल में पढ़ा के भेज देते हैं। क्यों फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं? क्योंकि वो समझ के आप सेकंड ईयर का पैथोफार्मा समझोगे, फर्स्ट सेकंड ईयर को जोड़ के आप ENT ऑफ द मेडिसिन सर्जरी समझोगे, फिर आप रेडियो समझोगे। तो फर्स्ट ईयर हो या फाइनल ईयर हो, 19 सब्जेक्ट्स आपको एक डॉक्टर बना रहे हैं। इसका मतलब 19 सब्जेक्ट्स आपको एक कोर्स का सब्जेक्ट है, स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग। हिस्ट्री नहीं पढ़ी, चलो मैथ्स में तो हम स्कोर कर जाएंगे, यहाँ डिफरेंस है। आप समझिए स्कूल लाइफ और कॉलेज ये प्रोफेशनल डिग्री है। स्कूल में हम करते थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग है। मेरी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, केमिस्ट्री वीक है, चलो यार फिजिक्स तो अच्छी है, नंबर स्कोर कर ले जाओगे। यहाँ अगर फिजिक्स अच्छी नहीं है तो केमिस्ट्री पे असर पड़ेगा, अगर एनाटॉमी अच्छी नहीं है तो सर्जरी नहीं होगी, फिजियो अच्छी नहीं तो पैथो नहीं आएगी, मेडिसिन नहीं होगी। आप समझिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम ईयर वाइज इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कैलेंडर बना है 365 दिन का, नहीं तो 5.5 साल का कैलेंडर बन जाता। एक कैलेंडर है ये, हमें सब्जेक्ट्स को अलग नहीं करना है।
आप एक डिग्री मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी का टॉपर उसको डिग्री अलग है, मेडिसिन का टॉपर नहीं, एक ही डिग्री है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में। जितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लो, समझ लो, उतनी जर्नी आगे स्मूथ होनी है। और ये बस लिंक। और सर ये आई थिंक जो नया करिकुलम आया है उन्होंने भी समझा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। अभी तुम अवेयर हो जाओगे कुछ टाइम बाद। CBME competency based medical education है, that is something which you will hear about it more and more. अब आते हैं एक जो वो बोलते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, जिसके बारे में सब लोग बात भी कर रहे हैं, आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, एंड दैट इज द नेक्स्ट। सो सबसे पहले a very basic information कि ये next exam है क्या? So let's focus a little bit on that. Next is the National Exit Exam. Now, when I say exit exam, तो ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम है। हर एक कंट्री का अपना अपना लाइसेंसिंग एग्जाम है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज गॉट USMLE, इस तरह से यूके का अपना है, ऑस्ट्रेलिया का अपना है। Almost every country has its own licensing exam, and India is also going to start with its own licensing exam, which is called the next. Lekin, how is it different from the other licensing exams? This is not just a licensing exam, but this is also a competitive exam, in the sense that whatever rank that you get in the next will be used for your PG counseling to give you a PG seat. So it is also a competitive exam. जितने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर से करके आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड दे वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया विल हैव टू टेक दिस एग्जाम। देयर इज नो एस्केपिंग। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो आपको ये एग्जाम देना ही होगा। नाउ दिस इज what the next exam is going to be like, but please understand the key word here is proposed. It is not final. It is still in the proposal stage. We do not have a gazette notification from the government कि ये final है, ये अभी भी discussion stage पर है। And what they have proposed is कि there is going to be, it is a 3-day exam with 2 sessions every day, morning and evening. तो पहले दिन morning session में medicine and allied subjects है, second afternoon session में pediatrics है, day 2 में surgery, afternoon session में ENT, day 3 OBGY, that is obs and gynae, and afternoon session में ophthalmology. So this is what they have said. But again, ये क्या है? What are these allied subjects? And how many questions? Now, all these morning sessions will have 120 questions each. तो 360 तो morning sessions के हो गए, और afternoon session में 60 questions. So another 180. So a total of 540 questions. How much time? Morning session is 3 hours, afternoon session is 1.5 hours. So total जो duration है इस exam का, this will be आप देखिएगा 9 plus 4.5, 13.5 hours. 540 questions, 13.5 hours. Now, allied क्या है? Medicine के साथ allied क्या हो जाएगा? What is allied with medicine? Like for instance, जैसे dermatology है, psychiatry है, radiology है, that is allied. Surgery के साथ allied क्या होगा? Orthopedics है, radiology है, all this will be allied with surgery. So what about your first and second MBBS subjects? Basic sciences के 10% questions हैं, preventive and social medicine के या community medicine के 10%. So 108 questions out of 540 questions are from basic sciences and from community medicine. So this is what is the proposed pattern. Now, the next is going to be divided like एक next part 1 जिसके बारे में मैंने भी बात की थी, which has to be taken at the end of your final year, और एक next part 2 भी होगा जिसमें आपकी clinical skills को assess किया जाएगा. This will be at the end of internship. This is a pass or a fail exam, but this is going to be mandatory. This is mandatory to qualify to get your internship completion. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों एग्जाम्स देने होंगे, दोनों next part 1 and part 2. Once you clear both the exams, only then will you get your degree and you will be able to practice. So that is what is the next exam briefly. Anything that you would like to add? We should add कि बच्चे थोड़ा डर गए होंगे कि 540 questions हैं. जी. But remember, it is in a span of 1 week. ऐसा नहीं एक दिन में नहीं है, एक दिन में possible ही नहीं है. जी.
तो Monday, Wednesday, Friday, like they have separated a day in between. Yeah. So it is spent in a 3 in a days. week, Three. पूरे week में, तो मतलब 5 days में एक day बीच one, में day छुट्टी two, आएगी, हाँ, एक एक बीच में पहले छुट्टी दिन आएगी। एक एग्जाम होगा आपका, सब प्रपोज है, मत आप समझ लीजिए कि आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जब तक इस स्टेज पे पहुंचेंगे प्रॉब्ली देने ही पड़ेंगे, बट ये दोगे कब, जब आप ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड ईयर क्लियर करके थर्ड ईयर आगे बढ़ोगे। तो चीजें स्टेप वाइज चलती हैं, बस ये माइंड, बैक ऑफ द माइंड रखिए कि दीज थिंग्स आर देयर, बट ऑब्वियसली लिव इन द प्रेजेंट टू। जी मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जी हम यहाँ पे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन वी आर हियर? Previously, you know that we were more focused on the first year कि भाई first year clear हो जाए, फिर मैम आपने बहुत लंबे टाइम से you are teaching जी। for such a long time, you know, जी। you are my senior, okay, so you must be knowing that previously जब हम तैयारी किया करते थे, तो we used to start in final year, sometimes in internship, the trend changed over the time, and we started preparing from second year, okay, a few who were in metro cities, बिल्कुल okay, अभी ऐप आने के बाद every student is starting from second year, third year, but now we started saying you should start from the first year. What is the reason? Because 1 year previously, very important. previously the exam used to be after internship. अब एग्जाम है इंटर्नशिप से पहले, यानी तुम्हारी लाइफ का 1 साल तो उन्होंने पहले ले लिया। जी। तो यदि उन्होंने 1 साल तुम्हारी लाइफ का पहले ले लिया है, तो यू शुड स्टार्ट अर्ली। तो दूसरा, just like horizontal integration, vertical integration, yes, I am, because ma'am and sir are the best person to tell about these subjects, but I have seen few videos, but I found that you have really integrated the clinical part so well. Sir has touched the surgical part and you have touched the medicine part. This is the vertical integration, you know, and which is required at the time when you are reading ECG, basic, and at the same time ma'am told about the different arrhythmias touched. She filled the gap between the physiology and the medicine, and the gap is usually lacking in the most of the textbooks, and this is the reason that we are recommending, and we are here, that this gap should be filled with the help of so experienced teacher. Okay, so I was really happy to see that the quality of lectures, definitely sometimes I am related, means engaged in the content team also, so that's why I was a little bit interested how it is going, and I was really happy that students are getting really good stuff, and that is what is our goal, isn't Yeah, it? definitely. Ultimately, हम क्या चाहते हैं? We want you to develop interest in these subjects. Yeah. And the fact that कि आप इनको apply कर पाएंगे when you are doing medicine, we want you to introduce that part. हाँ, अभी इस समय आपको ये नहीं बताएंगे कि आप क्या investigation करेंगे या क्या treatment करेंगे, लेकिन अगर मैंने आपको hypokalemia के बारे में बताया है कि potassium level जब कम हो जाता है, तो अगर मैंने आपको उसकी physiology बताई है कि अगर potassium level कम हो जाएगा तो ज्यादा potassium cell के अंदर से बाहर जाएगा, cells hyperpolarized होंगे, तो उससे क्या होगा और उससे ECG पर क्या असर होगा, अगर मैं आपको ये बता पा रही हूँ, then when you actually do medicine, you will be able to correlate everything so beautifully, and then you will, then the joy of learning comes, and that's exactly what we want to instill in each one of you, is the joy of learning. Absolutely. Medicine is a fascinating field. We are not just faculty, we are passionate about our subjects. मुझे आज अगर पूछो तो कि आप, मुझे लगता है कि मैं और किसी सब्जेक्ट के लिए बनी ही नहीं थी. I'm made only for physiology, like you also. So you are going to be taught by some very passionate, very committed, very dedicated faculty. And like I said, we want you to enjoy this journey. We want you to have joyful learning. That is what is our goal. सर बता रहे थे बहुत अच्छा पॉइंट की how are we integrating the first year मतलब प्री क्लिनिकल विद क्लिनिकल. इसमें एक एग्जांपल ऐसे मेरे ध्यान आया. मान लीजिए आपको हम सिर्फ बताते रहे गाड़ी चलानी कैसे है, आपको बताते रहे हाँ ऐसे चलानी, बैठ के टेबल कुर्सी बैठ के स्टीयरिंग ली, गियर लिया, कितना दिन बताएंगे ऐसे. आप दूसरे हफ्ते बोलोगे अब तो बैठा दो गाड़ी में. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको खाली मैदान तक तो हम सिखा देंगे गाड़ी, अभी सड़क पे नहीं ले जाएंगे, मतलब अभी लाइफ पेशेंट को दिखाएंगे. इट इज अवर मोटिव कि जब आप फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बीट एना, फिजियो, बायोकेम, यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया कि इसका यूज आने वाला है. द रियल फन इज गोइंग टू बिकम, बट आई एम टू बी प्रिपेयर्ड. एक कहावत है, आंखें वही देखती हैं जो दिमाग को पता होता है. आईज ओनली सी व्हाट द माइंड नोज. एंड द फर्स्ट ईयर वी आर लेटिंग योर माइंड टू डेवलप दैट एनर्जी, दैट इंफॉर्मेशन. सो सेकंड ईयर में योर आईज स्टार्ट टू सी.
इसलिए हम फर्स्ट ईयर में आपको गाड़ी चलाना कैसे वो बताएंगे, और खाली मैदान में मतलब कि इन सिमुलेटेड वे आप बता देंगे इसका एप्लीकेशन यहाँ है। फ्रॉम सेकंड थर्ड ईयर व्हेन यू गो टू वार्ड्स, देन आप गाड़ी ले जा रहे हो धीरे धीरे सड़क पे, अब आपको मजा आएगा कि वहां मुझे बचना भी है, संभलना भी है, सोचना भी है, ट्रीट भी करना है, सब कुछ करना है। तो जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? रूम में, जहां आपने सीखा बेसिक फंडामेंटल्स, क्लच कब दबाना है, गियर कब बदलना है, धीरे धीरे करके। तो वही मैं स्टार्टिंग बोला 19 एक है, इसे अलग करने की गलती मत करना। फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी आपको रेडियो में हेल्प करेगी और फिजियोलॉजी आपको मेडिसिन में हेल्प करेगी, सब पूरा लिंक है। धीरे धीरे यू विल एक्सपीरियंस इट। वी आर जस्ट हियर टू टेल यू द इंपॉर्टेंस of each and every subject, not just an physio, each and every subject. That is, सर एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफिकल्ट है कि गाड़ी जब हमारे पास थोड़ी बहुत आ जाती है तो मन करता है कि रोड पे ले जाएं, ठीक है? तो वो तो वार्ड में if the patient allows, तो patient does not allow. तो सर थोड़ी सी ये फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि वो जो एक कोर डिजायर होती है ना टू बी इन टच विद द पेशेंट, वो तुम्हारी कहीं लैकिंग रह जाती है। तो डियर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और वही पेशेंस तुम्हारी लाइफ में रिवार्ड देंगे। I think वो नए colleges में with CBME, competency based management, we have started in lectures vertical integration. Yes. So even the clinical faculties are bringing patients. We are Definitely. taking the students to Yes. the wards. तो एक exposure मिलेगा because we know it is needed. बिल्कुल, जैसे अगर हेमीप्लीजिया का पेशेंट है तो हम कोशिश हाँ, करते हैं कि obviously. हेमीप्लीजिया आपको अगर हम ट्रैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो देन वी ट्राई एंड शो यू अ पेशेंट ऑफ हेमीप्लीजिया एज वेल। और Yes. जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है तो एक टिपिकल पेशेंट, अगर पेशेंट नहीं तो कम से कम फोटोग्राफ एंड उस तरह से आपको इमेज भी दिखा देते You can ask question, dear friends. So we are taking questions also. If Yes. you have any Yes. question, then Yes. you are free Yes. to So a ask. very brief look at how is the NEET PG and the next exam different. NEET PG एक optional exam है, ये एक mandatory exam है। NEET PG 1 day exam है, this is a 3 day exam, जैसे आपको बताया गया है कि 3 day मतलब बीच में एक गैप भी है। This is a 3.5 hours and the next exam is 13.5 hours. इसमें 200 questions हैं, यहाँ पर 540 questions हैं, and central institutes are most probably going to be included in the next exam. मैम इसमें मैं एक जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो एक चीज ध्यान रखना कि सिंगल लाइनर पहले बहुत हुआ करते थे, बट नाउ दे हैव क्लियर्ड बाय दिस कैलकुलेशन कि पहले एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला करती थी। यदि अब हम कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट है। तो इसका मतलब वो लंबे क्वेश्चंस होंगे, लेंथी क्वेश्चंस, वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, Yes. अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे, इंटीग्रेटेड These क्वेश्चंस questions होंगे। This तो is- इसका मतलब आपकी वो जो एप्लीकेशन की जो हैबिट है वो हमने डे 1 से शुरू करनी है। यस, जस्ट लाइक पहले क्या था 200 क्वेश्चन के लिए 3.5 आवर, अब 120 के लिए 3 आवर्स है। तो यानी मतलब मैसेज इज क्वाइट क्लियर कि अब तुम्हें वही एग्जाम पैटर्न होगा जो तुम पेशेंट्स के साथ रियल लाइफ में फील करते हो। पेशेंट आएगा, बहुत सारे सिम्टम्स बताएगा, तुम्हें कैच करने हैं कौन से सिम्टम्स मेरे लिए रिलेवेंट है, कौन से नहीं है, और वही पैटर्न तुम्हारे एग्जाम में आएगा। आई फील दैट्स रिक्वायर्ड एंड इट वुड बी इजियर फॉर स्टूडेंट्स टू गो इन रियल प्रैक्टिस। पहले से ही वो तैयार कर रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, तो इट इज गुड, इससे घबराना नहीं नेक्स्ट से। तो मैम मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए बताने हूँ कि घबराना नहीं है। इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। जो उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया है, इससे तुम्हारी जर्नी बहुत सिंपल होने वाली है। कभी कभी लगने लगता है कि डिफिकल्ट होगी, नहीं डियर फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल होगी। इससे तुम्हें एक टच मिलेगा क्लिनिक का। सर ने बताया कि अभी रियल पेशेंट भी आने लगे हैं, बट आई फाइंड दैट अभी इंटीग्रेशन सारे मेडिकल कॉलेज में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं हो पाया है। तो meanwhile that's why we are here. Just to tell you that how these clinical things are going to integrate. Okay. और एक छोटा सा प्रपोजल जो किसी ने कहा था, अगेन proposal है, and they had said that एक step 1 may be divided into 2 parts, where part 1 will be at the end of second year, जिसमें first और second MBBS के subjects include होंगे, anatomy, physiology, biochemistry, pathology and pharmacology, microbiology. And step 1 का जो second part है, that will be clinical subjects, that will be at the end of final year. But again, ये proposals है, अफवाहें हैं, ये अभी भी आप सोचिए, ये अभी एक it is not yet final. This was again, but like I said, it's always good to have knowledge about किस तरह से
ये बातें इसके ऊपर चल रही हैं नेक्स्ट के ऊपर. So this is the reason why we have included the slide. अब नेक्स्ट शुरू कब होगा? Now it was supposed to start in 2022. अब तो 2022 भी गया, 2023 भी जाने वाला है. Where is the next exam? So we really do not know. Again, we are waiting for the official notification. But ये मान के चलिए कि जो आप करंट फर्स्ट ईयर्स हैं, जैसे आप अभी ज्वाइन किए हैं, नाउ अब नेक्स्ट की इतनी बात चल रही है सिंस 2019, तो you can take it for granted that you will be taking the next exam. I can put my Yes. money ki the first year will put my because money over there. because now we don't have, now nobody can say कि हमें पता नहीं था नेक्स्ट. अब वो 2019 से बात चल रही है, तो जो 2023 में ज्वाइन कर रहा है, that child will be expected. After 4-5 years, most probably it will come. Yes. Ma'am, few questions are there. जी. One question is that the course is very vast. जी. It seems very depressing. What and how should I do? जी. When and where to do? There are too much exams ahead. How to have a good time management? Yes. Again, reiterating what we have already discussed with you, that firstly, the first thing that you have to do is, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, try and do the same topic from the book the same day. Right? और generally, अगर आप breakup करेंगे तो उस दिन possibly 4 या 5 pages of a particular textbook must have been taught in the lecture, not more than that. Because your teachers in college also break down the subject, break down the topic into smaller topics, and that's how it is taught. Number 2, how do you approach that? One way is see our video lecture, जिसमें हमने बहुत concise और crisp करके उस particular subtopic को present किया है. Just see that relevant part and then read the text. That makes it slightly easier for you to do. Again, number 3, how much time? Like I said, you have to give yourself at least 2 hours of study every day. आप रोज नियमित तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो it will become easier. अगर आप इसको सोचते जाएंगे कि बहुत पढ़ाई है, कैसे होगी, और उसको पाइल ऑन करते जाएंगे, वो एक तरह से it will become overwhelming. So my suggestion would always be that regular, consistent study. Again, like I said, not more than 2 to 3 hours. It should be more than enough. And थोड़ा बहुत relaxation भी आप कीजिए. जिसी तरह से भी आप relaxation आपको लगता है, maybe you like going for a jog, you like to interact with friends. जिस तरह से भी आप relaxed अपने आप को थोड़ा relaxation का time भी रोज दें. Weekend पर I would urge you to revise everything that has been done in the week. So whenever an exam comes up, you'll find it very easy to tackle that particular exam and you will not get overwhelmed. So these are 5 points from me. And I guess हमने starting में भी की discuss ना that we need some discipline plus 10% of it. So I guess यहाँ पर because it's a big professional course, serious professional course, we have to develop some time management skills. For example, just giving you an idea, आप एक weekly plan बना सकते हो. In 1 week मुझे इतना पढ़ना है, but that should be number 1 priority. फिर से बोल रहा हूँ, योर स्टडीज एकेडमिक्स शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी. देन आप सोचिए कि मैं क्या हॉबीज हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर है, आप उसमें ऐड कीजिए. तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. सेकंड थिंग, व्हेन यू आर मेकिंग एनी प्लानिंग, तो आप देखिए मुझे एकेडमिक्स में कहाँ तक जाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आई हैव टू रीच वेयर. तो वो एक टास्क आपका क्लियर होगा कि मुझे यहाँ तक ही जाना है, बट अगेन प्रायोरिटाइज योर एकेडमिक्स फर्स्ट. तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मान लीजिए आपका कोई टेस्ट नेक्स्ट वीक है, तो यू शुड नो अभी कुछ पढ़ लेता हूँ, पर एक टेस्ट से एक दिन पहले आई विल रिवाइज इट. सो यू हैव अ प्लानिंग, तो आपको एंजाइटी कम होगी. आपको पता है कि आई हैव दैट थिंग इन माय हैंड, आई हैव थिंग इन माय कंट्रोल. मैं अभी 2 घंटा पढ़ लूंगा और एक टेस्ट से एक दिन पहले आई विल रिवाइज इट. अब अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चलो, नहीं देखते हैं, तब वो एंजाइटी डेवलप होगी, तब आपको टेंशन में आएंगे. इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वीकली आप बना सकते हैं. यू कैन मेक इट अ मंथ. आई गेस वीक इज अ 7 days. We can plan around 7 days. और आजकल तो कॉलेजेस में भी जनरली पूरा प्लान आपका पहले से ही डिक्लेयर. मोस्ट कॉलेजेस आर डूइंग दैट द कंप्लीट इयर्स प्लान हैज बीन डिक्लेयर्ड और इट्स पुट अप समवेयर where you can have a look at it. तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक में मुझे क्या पढ़ाया जाने वाला है, what I should concentrate on. So एक तरह से वो जो एक वीकली प्लानर है, that becomes extremely important. But don't forget the extracurricular, because that is a very good balance. आपकी कोई भी हॉबी है, आप आर्ट बनाना है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, जॉगिंग, जैसे मैम ने बताया, कुछ भी है,
ट्राई टू, उसको आप करिए, उसको आप प्लीज उसको छोड़ मत दीजिए, आफ्टर स्कूल आफ्टर नीट छोड़ मत दीजिए, बिकॉज सर समझाएंगे एक्सरसाइज से या कोई फिजिकल आप काम कर रहे हो, आपकी उसकी ब्रेन की पावर, ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, इट हेल्प्स इन योर एकेडमिक्स और इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मूड. तो प्लीज एक्स्ट्रा करिकुलर मत छोड़िए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, नंबर 1 शुड बी एकेडमिक्स, नंबर 1 शुड बी एकेडमिक्स. मैम इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा. देखो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब भी हम एमबीबीएस में एंटर करते हैं वी हैव सम कॉग्निटिव एरर्स. रीजन वही होता है कि वी ऑल आर टॉपर्स. व्हेन आई एंटर्ड इन एमबीबीएस आई डू रिमेंबर एवरीबॉडी वाज टॉपर. Few persons are quick learner, few persons are having some language barriers, just like I was feeling that I was weak in English. Even now my pronunciation is not so well, but yes, gradually I learned, but at that time I struggled a lot कि जो सारे language है वो English है. और तो I give you one example that so many hurdles may come. ठीक है, कुछ issues होते हैं, family issues होते हैं, different persons are having different issues. Okay, कुछ peer pressure होता है. And other than that, बहुत सारे issues आएंगे. And the fact is that the number of exams are really quite large. So ये stress आना बड़ा स्वाभाविक है. And the main disturbing point is that we are forgetting the things. Yes. क्योंकि एक rule है, just like rule of memory है, scientifically proven है. जो भी मैं बात बता रहा हूँ that is scientifically proven. In the same way there is a rule of forgetting, concept of forgetting. तो जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाता है तो द न्यू कंटेंट इंटरफेयर विद द रिकॉल ऑफ द प्रीवियस कंटेंट एंड द प्रीवियस कंटेंट इंटरफेयर विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंटेंट. तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी आएगी. बट हाउ यू विल सोल्व दैट प्रॉब्लम? पहली चीज तो यू शुड मेक निमोनिक. Mnemonic is not just acronym that if I initial letter acronym is the simplest type of mnemonic. There are story mnemonic. Yes, I usually discuss because I have worked on the memory technique also in my lectures in psychiatry. I usually tell all those techniques of mnemonics. Okay, that is, but you are not going to watch my psychiatry lecture at this time. But yes, remain connected. We will conduct some lecture on how to improve memory and how to register for a longer time on our YouTube channel of NM Next only. Okay, so remain connected for that. For the time being, one thing is yes, improve your study pattern. Second thing, just like ma'am told that few topics should be learned thoroughly and few topics should be touched. Yes. And come back. So you should realize that which topic should be touched and go back. So if you will do like that, then I feel that stress would be less. Sometimes we started thinking that I will learn because we are toppers. We have learned in 10th, 12th that everything is learned in exhaustive manner and we do remember. But in medical field, it is little bit different. You know, you can't learn, even I can't say that after so much of years, I can't say I am a master of psychiatry. Nobody can say because the whole life we learn. Yes. So never ever think that we will learn everything about any topic. You can think if a topic is there, you feel that after 3 days exam is there, then you will read that topic in a short form. Just like lectures are there, ma'am's lectures are there, sir's lectures are there. You read that topic from that lecture so that you can answer that question. At least you will give good performance in your exam. So don't think that at this time I will cover each and every minor details of that topic. So in this way you can. Second thing, trust in your memory, trust in your competency. That all are equal. If I am forgetting, everybody is forgetting. Okay, so this is the fact. Everybody is forgetting. So never ever think like that. This time I will fail in this part completion test PCT. No, you will not fail here. And just have confidence and read important topics. Okay, which are usually asked. And in this, ma'am, I will challenge your one point. Sorry for that. Just like I do remember that sometimes you are struggling in this situation that exams are coming so early. At that time, you can go with the recently asked papers in your exam. Your senior can tell you and mark the questions. So it means I fully agree. I'm not. This is the previous year's question papers are very important. But
अभी नहीं बोल रही नहीं, हूँ, हाँ, थोड़ा और समय हाँ, निकल जाने दीजिए, जब बहुत- एग्जाम्स जब पास आ जाएंगे then it becomes very important to go through. अगर आप CBS पढ़ रहे हैं then go through your previous year's questions and see which are the important, and invariably आप देखेंगे हर एक एग्जाम में baroreceptors पूछा गया है, Yes. हर एक एग्जाम में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पूछा गया है, और या ECG पे एक शॉर्ट नोट पूछा गया, तो then you know exact what Yes. to be. आपने सब पढ़ा होगा, Yes. लेकिन एग्जाम से पहले अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे then it becomes extremely easy for you to focus on some topics. So I feel if you are struggling जी to cover the topics due to your personal reasons, बहुत सारे reasons होते हैं, ठीक है, तो then you can adopt this way जी। because every person is different. जी और हमें अपने टेलर्ड करना होती है अपनी प्रिपरेशन, कि मुझे लग रहा है कि जस्ट लाइक मैम टोल्ड ए गोल्ड स्टैंडर्ड, आई एम टेलिंग यू द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट इफ यू फील दैट आई कैन अचीव द सक्सेस बाय दिस वे एंड आई शुड नॉट बी मेंटली अनस्टेबल, जी तो means you can adopt that way also. जी। You can go at this time when you will be able to manage the time, or you will learn so many things. जी। Then you have sufficient time. That break will be there, summer breaks will be there, winter breaks will be there. At that time, read the things. revise Revise whatever slowly. you have done So earlier. at this time you should not be panic. जी बिल्कुल This is my opinion. बिल्कुल बिल्कुल और एक चीज तो है ही कि हाउ डू यू रिटेन सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवीजन, है ना, रिवाइज रिवाइज रिवीजन से ही, तो अगर आपने पढ़ा है फिर आप वीकेंड पे एक बार ग्लांस कीजिए व्हाट हैज बीन टॉट इन द प्रीवियस वीक, देन जस्ट बिफोर योर यू मे हैव योर टेस्ट, तब आप एक बार फिर से देखेंगे, फिर जब भी कोई ब्रेक आएगी तो उसमें फिर व्हाटएवर हैज बीन डन इन द प्रीवियस कपल ऑफ मंथ्स try and do that once again. So बार बार जब आप उसे देखेंगे तो उससे आपको रिटेन करने में आसानी हो जाएगी। एक और चीज मुझे लग रही है, जैसे कि कोई टॉपिक है जी पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, जी। कोशिश करते हैं हम सब लोग एक दोबारा ट्राई करें। जी एक और छोटी सी चीज आप ट्राई कर सकते हैं, आपका कोई कलीग हो, फ्रेंड हो, उसको आप एक बार उसे पढ़ाने की कोशिश करें। आपने जो पढ़ा है, जितना समझा है उससे आपको समझाएं। तो जब आप उसको समझाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाए तो वो भी आपसे कुछ उसमें डाउट पूछेगा। एक होती है टीचिंग टेक्निक, आप अपने फ्रेंड को कुछ भी समझाएं तो एक तो आपका रिवीजन होगा, वो वहां से डाउट पूछेगा, तो इस तरीके से आपका वो टॉपिक और मजबूत होगा। जहां तो जैसे मैम ने बताया भी रिवीजन की चीज है, तो जब भी आप कोई चीज पढ़ लेते हैं, आपने उसे मान ली 4 घंटे लगाए, आप चाहेंगे नहीं वो 4 घंटे जीरो हो जाए, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कुछ दिन बाद जब आपको लगे कि मैं रिवाइज करके भूल रहा हूँ, आधा घंटा उसे और दीजिए। रिवीजन आप जितनी बार कर पाएंगे, 2-3 बार करेंगे, जाहिर सी बात है आप किसी को, अपने दोस्त को पढ़ाने लायक हो जाएंगे। जब आप कोई टॉपिक किसी को बता सकते हैं आराम से, आसान भाषा में, जी तो आप समझिए कि आपको टॉपिक आ गया है, बिल्कुल। और अब आपको उस टॉपिक से एंजाइटी खत्म हो गई, बशर्ते कितना ही मुश्किल टॉपिक। मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ कि आप एक स्टडी बडी, यू नो, स्टडी बडी क्या है कि आप one friend or maybe 2 or 3 friends get together and discuss जो पढ़ाया गया है, जो आपने दिन में पढ़ा है, उससे अगर आप जैसे अपने डिनर के लिए गए, डिनर के बाद आपका मन नहीं कर रहा है सबका पढ़ने के लिए, आप सब बैठ के बातें कर रहे हैं, उस समय अगर आप डिस्कस कर लें कि जो आपने पढ़ा है, इट रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक स्टडी बडी, है ना, उसकी तरफ आप जरूर ध्यान दें। यू मस्ट ऑलवेज हैव सम गुड फ्रेंड्स विद whom you can discuss. ये भी मैम शायद एक बहुत बड़ा चेंज है स्कूल से और कॉलेज में। जी, स्कूल में बिल्कुल। आप अपने पेरेंट्स के अंदर एक घर में हैं, आप आराम से बैठे हैं, वहाँ आपको स्टडी बड़ी नहीं मिल पाएगा। मेरी स्टडी बडी तो मेरी मॉम होती थी उन्हीं को सुना दिया करते थे। तो बट जो भी आपके जो आपने पढ़ा है और सुनने के लिए तैयार हो, उनको आप अपनी एक बार study आप buddy- इस चीज को ट्राई करें 2-4 दिन, जी यू विल रियलाइज द डिफरेंस। डिफरेंस। मैं नहीं कहता हूँ कि आप, मैं यहाँ चीज थोपी नहीं जा रही, वी आर गिविंग यू वेरी 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 गुड आइडियाज विद ऑल अवर एक्सपीरियंस। हर चीज ट्राई कीजिए, देखिए क्या आपको सूट कर रहा है। जी तो इस हर एंगल जो हम सब ने बताया आपको चीजें ट्राई कीजिए। जी। इफ यू रियलाइज द डिफरेंस, प्लीज गो अहेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर एक आपके लिए क्वेश्चन जी है, जी प्लीज। हाउ टू रिमेम्बर एनाटॉमिकल टर्म्स लाइक मसल अटैचमेंट्स एक्सेट्रा? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, यस, एनाटॉमी मैंने एक वर्ड बोला था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा वीडियो पीछे जाएंगे आपको मिलेगा, थोड़ा सा पेन है ये, बिकॉज एक मसल है, मैं आपको और बताऊं, आर्टरीज की ब्रांचेस, वेसल्स, नर्व्स की ब्रांचेस, मसल के अटैचमेंट कहाँ है नहीं समझ में आते। तभी मैंने बोला एक वर्ड एनाटॉमी में, दैट इज विजुअलाइजेशन। आई सेड बीडीसी खोलिए, मेन बुक ये है, नोट समझिए, उसको थोड़ा समझना है, कंसेप्ट्स देखिए, हमारे वीडियोस देखिए, बिकॉज वी हैव कंपाइल्ड व्हाटएवर वी आर सेइंग इन आवर वीडियोस, दैट इज ऑल द क्रक्स
आपको एक बार नॉलेज मिल गई, अब क्रक्स पे देखिए, साइमल्टेनियसली ओपन है एटलस, प्लीज एटलस देखिए, एटलस helpful atlas, I'll tell you, Netus is a good. If you want the actual photographs, Macquin's atlas is good. We have Grant's atlas, we have Times atlas, बहुत सारी हैं, choose anyone. तो anatomy is all about visualization. अब जैसे for example एक कोई मसल उठा लेते हैं, जैसे for example biceps, common मसल है, even a person who is non-medical पता है उसको what is biceps, biceps यहाँ की मसल. अब इसका attachment का action क्या है? अब biceps you all know causes movement, flexion of elbow. तो obviously एक मसल का concept बता दूं, a muscle has to cross a joint to cause a movement at that joint. अगर वो joint cross नहीं कर रहा है तो वो वहां पे movement नहीं करेगा. For example, biceps wrist को नहीं move कर सकता, because biceps not coming over here. So biceps has to cross elbow, means it has to go from humerus or a proximal bone to a distal bone, either radius or ulna. दूसरी बात, anatomy is such a beautiful subject because many things here you can visualize. आप ऊपर से you can do it practical. For example, I will teach you if you see the lectures, एक movement होती है supination pronation. I hope सबने सुना होगा. Supination is movement like this, like we say ना, beggar supinate. So if you do a supination, आपको feel होगा biceps contact कर रही है. core concept जोड़िए, supination movement is a movement of radius. अब देखिए आप, हमें कड़ी जोड़नी है एक से दूसरी कड़ी. Supination में radius move करेगी, बाइसेप्स इधर आ रही थी फोरआर्म में, इसका मतलब बाइसेप्स को रेडियस पे जाना चाहिए. अगर बाइसेप्स अल्ना पे गई तो सुपनेशन नहीं करा सकती है. अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी बस चीजें जोड़ी, आंसर आपके सामने तैयार है. बाइसेप्स गई रेडियस में, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया भी हुआ है ऑन द रेडियस व्हिच मसल इज अटैच करके. सो इन दिस वे मसल को समझिए कि एक टूल है मूवमेंट के लिए. अब जो ये जॉइंट को क्रॉस करेगा, मसल जॉइंट को क्रॉस करेगी, नहीं तो मसल नहीं है. अगर एक ही बोन में मैं मसल यहाँ से यहाँ डाल दूं तो मूवमेंट क्या करेगी? बात खत्म. बिल्कुल सही बात. जस्ट देखिए कितने ब्यूटीफुली सर ने एक्सप्लेन किया, ये चीज है ना. और इसी तरह से हमने लर्निंग, वी हैव टू मेक इट फन एंड जॉयफुल, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड डू, राइट. और जो एलन एडवांटेज क्या है, यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ इट इज अ वेरी लीडिंग coaching institute for NEET UG, but now it is also for medical students. और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है. जितने हमारे स्टूडेंट्स जो NEET UG क्लियर करके जो मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया कि सर अब आपने हमें मेडिकल कॉलेज में तो दाखिला दिलवा दिया, हेल्प कर दी टू clear our NEET UG. अब now hold a hand through this journey as well, and that is how the Allen Next was started at the beginning of this year. Right. So this is जो आपको हमने बताया है. What are the lectures will be anatomy, physiology, biochemistry, designed for first prof students to help you clear your first prof exams. Not just clear it, nail your first prof exams. That means आप अच्छे से perform कर पाएं in your first prof. And this is what the course will have. 150 plus hours of main lecture videos, 30 plus hours of rapid revision videos. Rapid revision videos we suggest just before the exams, and question bank होगा जिसमें आप high value और high probability questions revise कर पाएंगे. आपके pattern based test and discussion. Pattern based test and discussion का मतलब क्या है कि we will be giving you a test. Let's say अगर जैसे आपने नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी कर लिया है, तो जनरल फिजियोलॉजी, नर्व मसल फिजियोलॉजी का एक टेस्ट हुआ है जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस पूछे हैं और उन्हें डिस्कस किया है. So basically what we have done, 50 important topics of these 3 chapters have been discussed with you. So this is a very unique feature in the foundation course, and you will also have PYQs, frequently asked questions of the prof exams, and we will also have highly detailed and illustrated notes which are available. This is... Yes, ma'am, this question was there. Why Allen Next? What is that is, we have already addressed that. So you have highly experienced faculty who has curated this course for you. Up to date hai, focused on the latest pattern, on your university prof, and also on the PG exam. Right from day one, we will tell you how to go about it. Comprehensive coverage है, and questions which are repeatedly asked, topics which are repeatedly asked, उन पे हमने ज़्यादा focus किया है. And more than that, for which Allen is renowned, hand holding. Psychiatry में हम मानते हैं कि in any situation, it's not the psychiatry क्या है, human behavior है. Yes, वही हम study करते हैं.
तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, वी वांट सम सपोर्ट एंड फॉर विच एलन इज रिनाउंड. यस, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग. यस, समटाइम्स यू विल से सर ये तो सभी जगह है, तो तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सपोर्ट है. मैं तो नहीं कहूंगा that would be totally filmy, but I would say this is the hand holding. Yes. I promise all of you that we will hold you just like during your MBBS preparation you were holded. Yes. When you entered the MBBS, now we will hold you and we'll take you till your PG. And another thing that we all faculty members do is we generally share our email IDs so that you can send us your questions. या WhatsApp numbers हम लोग share करते हैं कि अच्छा आप हमें questions भेज सकते हैं. Yeah. And that is very important because कई बार क्या होता है, जैसे I don't know whether, I'm sure we all have gone through it, कि कई बार हमारे बहुत silly doubts होते थे. Yeah. और हम अपने टीचर्स से पूछने में हमेशा थोड़े से हिचकिचाते, hesitant होते थे कि कहीं हमें जज ना करें, you know. And there are some doubts which are there which you feel are silly, but as faculty we don't. We feel every doubt is genuine. And sometimes those doubts are unanswered throughout your medical college. So I don't want you to face that. I want you कि कुछ भी doubt हो, you should be able to send it across to the faculty, and I can give you in writing that we will get back to you either as a voice message or as an email and make sure that the particular doubt is settled. Definitely, this is a Ji. part of hand Ji. holding. Ji. Again, Ji. okay. This is my email ID, WhatsApp number. If you have any trouble you are facing that I am emotionally unstable, Yes. you can contact me anytime. Okay. Yes. So don't feel helpless. We are always there, as I promised. Ji. For hand holding, we are famous. Now we are part of Alan, and we are famous for that. And this is a specialty you will never find anywhere else. Okay. This is my number now, ma'am's sir's number. हमारा sir last email slide ID. में. Okay. Let's go to that. Last slide has got our email IDs. Yeah. 1 minute. Okay. Yeah, so these is- are these our are email email IDs. IDs. Yes. Okay. So All feel right. free to connect. Never ever hesitate. If you are part of Alan, so very good. Even if you are not part of Alan, being medical, you can connect with us. It's not about that if you purchase anything that we are there for you. Even if you don't purchase, we are there. बिल्कुल. So never ever hesitate. This is the specialty. Yes, we Absolutely. should give you, Absolutely. and this is the freedom we should give you. That anytime you feel that we are required, we are always there. I guess mentor is the word. बिल्कुल. Yeah. Mentor We is the word. pride ourselves on being mentors. Mentors. Yeah. So हम लोग इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं that we can be mentors to young minds such as yours. And anything to add? मैम, कई बार तो मैं स्टूडेंट्स में अपनी दोबारा से जवानी जी लेता हूँ. ऐसा जी, है बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल. बच्चों को बच्चे ही हो तुम मेरे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हो, जी. तो जब तुम्हारी हेल्प करता हूँ, MBBS से पढ़ते हुए देखता हूँ, ग्रो करते हुए देखता हूँ, तो वो अपने दिन याद आ जाते हैं. दैट्स व्हाई आई यूजुअली रिमेन कनेक्टेड टू माय स्टूडेंट्स. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं कभी ना कभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो मुझे अच्छा लगता है तुम कनेक्ट होते हो, तो कभी भी कनेक्ट कर सकते हो. Absolutely, absolutely. और यदि बात रही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर तो मैम से सर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा या अमित सर से. जी, तो जी, जी, जी. चलिए, सो आई थिंक आज बहुत सारा ज्ञान आपको दिया है, एंड हमें भी बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो एंजॉयड. At least if we can be of any help to you, if this session can be of any help to you, we will be so happy, and we would love to hear from you. We've shared our email IDs. We would love to hear from you, and stay connected with us. And thank you very much, and all the best. all the best. All the best.